हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू तम गुरुकुल वर्ल्ड वंस अगेन। सो हम लोग एंड ऑफ एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशंस कर रहे थे, तो उसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। ओके, सो इफ यू सी दिस क्वेश्चन, इट सेज if the temperature of a liquid can be measured in Kelvin units as x Kelvin and in Fahrenheit unit as y degree Fahrenheit, the relation between the two systems of measurement of temperature is given by the linear equation this. So between y and x, this is the relation given. Now it says find the temperature of the liquid in Fahrenheit if temperature of the liquid is 313 Kelvin, and the second is if the temperature is 158 degrees Fahrenheit, then find the temperature in Kelvin, right? So the question is saying that x part represents Kelvin, Kelvin scale, and y part represents degree Celsius scale, degree Celsius scale, right? Now they are giving the equation is y is equals to 9 by 5, then x minus 273 plus 32. This is how the relation between y and x is given. Now the first question is, if the temperature of the liquid, any liquid, if they are trying to find out the temperature, it says if the temperature of the liquid is 313 Kelvin, it means they are giving you the x. In the first part, they are giving you the x 313 Kelvin, right? Kelvin scale is used for what? X. So the value of x is given, and you are supposed to find what this temperature would be in Fahrenheit scale. The second part, if the temperature is 158 degree Fahrenheit, now it is giving Fahrenheit, it means Fahrenheit represents what? Y. So y value is 158. So what is given? This is degree Fahrenheit, right? Degree Fahrenheit. So they are asking to find this Fahrenheit changed is to Kelvin. My bad, I have written Celsius here. This would be Kelvin. Now we understood the questions. It's simple. We have to simply put the values and we have to find the another value for the different scale. So let me erase this. Okay, let's go to the first part. If we see the first part, let me put the equation first once again. Y equals to 9 by 5, x minus 373 plus 30. Now what is the first part? They are saying the x value is given. X value is given 313. So at x equals to 313 Kelvin. So we'll put the value y equals to 9 by 5 and x key value is 313 minus this was 273, right? This was 273, my bad. The equation was 27. We have put in the value of x plus 32. We need to solve this. 9 by 5, and this would be how much? 3 minus 3 is 0. Then 11 minus 7 is 4, and that will look at this one plus 32. If you see this got 8 times, so 9 multiplied by 8 is 72, and plus 32, this should be 2 to 4, 7, 3, 10, 104 degree. 104 degree what? It is important. This should be Fahrenheit. Let's see the second. Let me take a different page. So it is given y is equals to 9 by 5, x minus 273 plus 32, right? Now it is saying at y is equals to 158 degree Fahrenheit. 158 Fahrenheit, let's reassure the same. Yes, 158, right? We have to find the value of x. Put the value of y. So 158, 9 by 5. Here we have to find x, so it will be add as it is plus 32. Take this 32 this side. So 158 minus 32 is equals to 9 by 5, and this is again x minus 27. How much this would be? 8 minus 2, 6. 8 minus 2, 6. And 15 minus 3, 12. 126. X minus 2, 7, 3.
So if this goes this side, if it is 9 by 5, this would be 126 multiplied by 5, cross multiplication, right? It would be 9 into x minus 273. Then you put this 9 here, this would be is equal to x minus 273. It's just the calculation. So 9, if you see, 9 ones are 9 and balance 3, 3 6 36, 9 4s are 36, right? So if we come this side, so 70 is equals to x minus 273. If we have to find the value of x, this 273 will take this side, plus 273 is equal to x, and x की value, how much this would be? 3 and 27 and 7, 34. So 343 watt. It was in Fahrenheit, so this is Kelvin. So this would be your answer. Let's go to the next question. Now this question, second one, is very simple. It says the work done by a body on the application of a constant force is the product of the constant force at the distance traveled by the body in the direction of the force. It's basically the definition of work done. So work done of a constant force is the product. What is product of the constant force and the distance traveled? So any work done is equals to force multiplication of distance. So what happens, I'll give you the simple idea. If you apply any force on this object, this is an object, right? If you apply any force, let's say this was at x equals to 0. If it moves, let's say it moves from here to here, obviously this would have traveled some distance, right? Let's say this distance is d. So the work done, that will be given by the equation W equals to force into distance. What they are saying is force is constant. This force is constant means force is not changing in between. What it means, अगर किसी को आप धक्का दे रहे हो तो सेम पावर से धक्का दे रहे हो, यू आर नॉट चेंजिंग, राइट? Express this in the form of a linear equation in two variables. Work is W and distance is d. So this is the linear form, right? This is, you may write as an answer, the first answer. And draw its graph by taking the constant force as 3 units. You can see here, this is again an example of something, right? Constant means this particular item is, force is fixed. It is not changing. What is changing? Distance. You may have pushed for some distance, again you may push for some distance, so the distance is increasing, right? But the force applied is fixed. If you have given the 5 Newton force, it would be 5 Newton. So it means work done, whatever the work, the output would be, that depend on what? That will depend on distance, how much distance you have pushed. So it is very similar to y is equals to ax. W, if we compare with y, our linear equation general formula, so we have a relationship between y and x. Same way we have a relationship between W and d. Now the constant force value is, constant force, how much? 3 units. 3 units. They have not given any Newton or something, just take it units. What is the work done when the distance traveled is 2 units? अगर work done निकालना है, work done का formula we have established force into distance. So at distance, how much? At distance 2 units. It means d की value is 2. So d की value 2 हो गई तो work done कितना होगा? Force तो हमें पता है कितना, it is given. Force is 3 unit. So 3 into, ये कितना हो गया? 2. It means work done is 6. 6 units is the work done. So this is the answer. Now it says verified by plotting it on the graph. So let's take the graph. So for the graph, what we do? We'll plot the points, right? So if we have to plot the graph, let's say we compare with this. This y equation, what this would become? This is the required equation. Now what we have done in very detail, what the graph is all about, take 3 points and plot it. X, y. If you put x 0, y will be 0. If you put x 1, y will be 3. If you put x 2,
y will be 3 to the 6, right? Now plot this 0 0, so this would be here only, right? X is 1 and y is 3. X is 1 and y is 3 is here. X is 2, y is 6, it would be here. Now let's connect it. Line represents y is equals to 3x, you say it, or you say w is equals to f into d, where force is fixed, or you may say this way, this one is also as w is equals to 3d. So instead of w 3d, we have taken this as yx, right? This is verified. Now what we have to verify? We have to verify if the distance is 2, the total work has to be 6. So x, this is the x-axis, so this x is representing is what? D, and this is y-axis, this represents what? This is represents w, right? Because the relationship is between w and 3. Now you see, when it is 2, so when it is 2, where it is going actually? It is going to 6 only. Let's see the next. Okay, this question is very important, right? I would say important. What it says, the graph of a linear polynomial px. If I say y is equals to ax plus b, this y only I can say it is polynomial in x is equals to ax plus b. So this format is little, difficult. People face for simplicity. Instead of px, we normally write y. It says the graph of a linear polynomial px passes through the point 1, 5 and 3, 11. These are the points. Or if we know this, if these are the points, it means what? This is x point, this is y, this is also x, this is y. Find the polynomial px. First of all, you are given only 2 points and you are asked to find the exact polynomial. Then it says find the coordinates where the graph of px skirts the axis. Then draw the graph px and verify your answer. Let's say this is x and y axis. We know one thing, if any graph is going, let's say a point is here, 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 I told you that we can have infinite number of points on a given line. It means many solutions are possible. So what all points are there on the line, they will satisfy what? This line equation. So we are given 2 points. It means the value of x and y, let's say this value is here, so this would be value of x and this will be value of y, and this is why this point will be x and y, right? So it means if this x and y value, if it is a solution of this line, this equation of the line, if we put x and y, this will satisfy. Now we'll use the same property. Let मान लेते हैं क्या ax plus b. Now first condition, the line, which line of this passes through 1 and 5. This will satisfy the equation. Satisfy the equation means if you put in place of x, it has to give the y. Satisfy the equation. Therefore क्या देखना है, x की वैल्यू क्या डालनी है? 1 अगर डालेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी, तो x की वैल्यू 1 डालो, तो y कौन है यहाँ पे? y कौन है? px है, राइट? अभी फिलहाल के लिए फॉर सिंप्लिसिटी इसको मान लेते हैं y. इट मींस x की अगर वैल्यू जो डालोगे, x की वैल्यू अगर 1 हम डालते हैं, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी. तो क्या हो गया? y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 इज इक्वल टू a, तो a ही रहेगा. x की वैल्यू कितनी? 1 है, a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस b तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसको क्या कर सकते हैं? 5 इज इक्वल टू a प्लस b. इसको लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1. दूसरी बात इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं. सिमिलरली सेकेंड पॉइंट के लिए क्या होगा? लाइन पासेस थ्रू 3 and 11. So this is x, this is y. Put in the equation. Y equals to ax plus b. What is the y? 11. 11 is equals to a की वैल्यू 3, तो 3x. We put a की वैल्यू 3, तो 3x plus x. b we don't know. Second equation. Now you have two equations and how many variables? We need to find the value of a, we need to find the value of b. Two variables, two equations. और ये मैंने कितनी बार कहा है कि जितने अननोन हैं
उतने इक्वेशंस होने चाहिए आपके पास यूजुअली, राइट? ओके, सो फ्रॉम 1 अगर b की वैल्यू निकाल ले, b की वैल्यू 5 इज इक्वल टू a प्लस b की वैल्यू निकाले तो a किधर जाना पड़ेगा, 5 माइनस a, है ना? इसी वैल्यू को इस इक्वेशन में डालेंगे, 11 इज इक्वल टू 3x प्लस b की वैल्यू डालो, माय बैड, x की वैल्यू इज 3, सो दिस विल बी 3a करेक्टेड, ओके? सो 3a प्लस b की वैल्यू 5 माइनस a. Now 11 is equal to 3a minus a. How much? 2a. Then this is 5. Send this 5 this side. So 11 minus 5, 2a. So 2a is equals to, this will be 11 minus 5, 6. So a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 by 2 means 3. ये आंसर नहीं हुआ, ये a की वैल्यू 3 हमारी निकल गई. हमें तो पॉलिनोमियल निकालना है. The question is find the polynomial. और पॉलिनोमियल ये निकालना है, मतलब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? a की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए. एक तो आ गई हमारे पास. क्या b की वैल्यू यहां से आ सकती है क्या? देखो इसको, b क्या हो जाएगा? 5 माइनस a की वैल्यू कितनी आई? 3. b की वैल्यू कितनी हो गई? 2. तो ये भी हमारा आ गया, राइट? a की वैल्यू आ गई 3 एंड b की वैल्यू 2. सो पॉलिनोमियल px जो होगा, या आप इसको y बोलो, जो भी आपको बोलना है, क्या था हमारा? ax प्लस b. अब a की वैल्यू कितनी आ गई? 3. सो इट इज 3x प्लस b की वैल्यू 2. तो ये आपका पॉलिनोमियल, ये फर्स्ट का आंसर हुआ, है ना? ये आंसर इज फॉर फर्स्ट पार्ट. नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ px कट्स द एक्सिस. ये सेकंड पार्ट, कोऑर्डिनेट निकालने वेयर px का अगर जो ग्राफ बनेगा, वो देखो ध्यान देना, एक्सिस को कहां कट कर रहा है. तो मैंने अभी स्लोप और इंटरसेप्ट में ही पढ़ाया था, अगर ये एक्सिस है, इस तरह से एक लाइन लेते हैं, तो ये वाला पार्ट जो y एक्सिस पे कटा है इसको b कहते हैं, और जो x एक्सिस पे कटता है इसको x इंटरसेप्ट. x एक्सिस पे कहां पे कट रही लाइन, उसको क्या बोलते हैं? x इंटरसेप्ट. और ये क्या होता है? b बोलो, इसके लिए नाम है स्पेसिफिक, या आप सिंपल बोल सकते हो y इंटरसेप्ट. और एक चीज बताओ, आप कोऑर्डिनेट में पढ़ चुके हो, अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट कट कर रही है यहां पे या यहां पे, इसका मतलब क्या होगा? उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, करेक्ट ना? और जो x एक्सिस पे कट रही, मतलब x का डिस्टेंस है, और वहां पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा. तो निकाल लीजिए. तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या होगा? सेकेंड पार्ट देखते हैं एक बार. एट x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? y. चलो ये y है हमारा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 0 रखो तो 3 इंटू 0 प्लस 2. इसका मतलब क्या होगा? 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, राइट? अब एट x इंटरसेप्ट निकालना है तो y की वैल्यू 0 है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 3x प्लस 2. y को 0 कर दो, 3x प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? ये 3x इज इक्वल टू माइनस 2, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 2 बाई 3. तो x का ये कोऑर्डिनेट क्या x हो गया, और ये क्या हो गया? ये y की वैल्यू हो गई. बट हमें क्या कह रहा है? कोऑर्डिनेट निकालो. तो कोऑर्डिनेट अगर हम जहां पे कट कर रहा है, तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट ऑफ x इंटरसेप्ट पे कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2 पॉइंट का होता है, तो x की वैल्यू क्या निकली? y इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू कितना होगी? माइनस 2 बाई 3 पे कट कर रही है, तो x इंटरसेप्ट x एक्सिस को कहां पे कट रहा है, मतलब y उसका 0 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 2 बाई 3, और y की वैल्यू 0. ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया. बहुत लोग क्या होता है, आप लोग जो है ना यहीं पे करके छोड़ देते हो, ऐसा नहीं करता है. आपने ये निकाला वैल्यू, बट आपको उसके कोऑर्डिनेट्स बोल रहा है देने के लिए, ठीक है? नाउ सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ y इंटरसेप्ट, तो y लाइन पे कोई पॉइंट है, इसका मतलब क्या? उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, और y हमने निकाल लिया कितना? 2. तो ये हो गया सेकेंड पार्ट का कंप्लीट आंसर. नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px एंड वेरीफाई योर आंसर. एक ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा है, चलिए बनाते हैं. आप कर लेंगे? चलो मैं कर देता. इक्वेशन क्या था हमारे पास वो देख लें एक बार. इक्वेशन हमारा क्या बना था? पॉलिनोमियल क्या बना था? 3x प्लस 2, y इज इक्वल टू 3x प्लस. मैंने क्या बोला? जब भी ग्राफ बनाना तो एक टेबल बना लो. 1 2 3 3 पॉइंट तो ले लो कम से कम. ये x हो, ये y हो गया.
x की वैल्यू एक जीरो रखिए, जीरो रख दिया तो ये पार्ट जीरो, तो कितना बचा 2। ऐसे भी दिख रहा था x जब जीरो है तो y, वो y एक्सिस पे कट करेगा कहां पे 2 पे, वो हमने देखा भी। x की वैल्यू 1 रखो, 3 1 जा 3 + 2 ये 5 हो जाएगा। x की वैल्यू और क्या 2 रख सकते हैं, 2 रख दो, 3 2 जा 6 + 2 8, ये हो गया। अब इसको प्लॉट करते हैं, जीरो फर्स्ट x का जीरो, x में कोई डिस्टेंस नहीं, y का 2, तो ये पॉइंट होगा। x का 1 एंड y का 5, x का 1 एंड y का 5, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। x का 2 एंड y का 8, 8 इज वेयर देयर, दिस वन, ये इक्वेशन हो गया। अब इसको कनेक्ट करते हैं, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये वाला किसका ग्राफ हुआ, दिस इज ग्राफ फॉर y = 3x + 2, जो आपका पॉलिनोमियल निकला था। अभी क्या वो वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, यू वेरीफाई दैट y जब जीरो है तो x को -2/3 पे कट कर रहा है। अगर मान लेते हैं y जब जीरो था तो x की वैल्यू हमारी क्या आई थी, यहां से निकाल लो फिर से दोबारा, 3x + 2 = 0 आएगा, तो 3x = -2, सो x की वैल्यू -2/3, -2/3 कितना होगा लगभग, डिवाइड करो 3 से, डिवाइड करो 2 को, सो 0.0 आएगा, 3 6 जा 18, फिर से वो रिपीट होता जाएगा 666, लगभग 60%, 50 से थोड़ा ज्यादा। अब देखो y जब जीरो है मतलब y की वैल्यू जीरो होगी, y में कुछ नहीं गया, तो x की वैल्यू कितनी जा रही है, देखो ये 0 से 1 यहां पे है, तो ये देखो 50% कहीं पे यहां पे आएगा, उससे थोड़ा ज्यादा है ना, तो इसलिए we have proved with the graph also that the straight line which we have found, that is correct, it satisfies all the points and the given polynomial is px, जो हमने निकाल लिया। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। This is very interesting, is very important सवाल। This one, if you ask me, this one I would say double star, very important questions. It may be there in your exams or class test or something. There is one polynomial given to you, px is equals to what, ax plus b. There is another polynomial q and they named it qx, and that is given cx plus d, right? We know this, a is slope, c is slope, b and d are the intersect. Be two linear polynomials such that, ये दो polynomials दिए गए हैं and इस तरह से दिए गए हैं, there are some conditions. As first condition क्या था, p0 की वैल्यू जो है वो 5, मतलब क्या हुआ, p0 का मतलब ये इससे कनेक्टेड, राइट, ठीक है। तो p0 की वैल्यू 5 है, इसका मतलब x की जगह 0 हम रख देंगे तो इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सो पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग x = 0 इन px में डालते हैं px, तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू 0 रखेंगे, ये हो जाएगा ax, x की वैल्यू क्या रखनी है 0 प्लस b, और p0 की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है इसने, 5 दे दिया इसने, तो a मल्टीप्लाइड बाय 0 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा 0 प्लस b, तो b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू 5 आ गई। एक्चुअली देखो अगर आप आगे जाओगे, फाइंड द पॉलिनोमियल्स px एंड qx, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो px और qx अगर निकालना है तो हमें क्या नहीं मालूम है, हमें a नहीं मालूम है, b नहीं मालूम है, c नहीं मालूम है, d नहीं मालूम है, तो हमें a b c d सबकी वैल्यूज चाहिए, तभी तो a का मान लो 2 आ गया, d का 3 आ गया, तो 2x + 3 हो जाएगा, जैसे हमने पिछले सवाल में कहा, राइट। तो ये कुछ कंडीशन, अब फिर से वापस आते हैं, ये कुछ कंडीशन दे रहा है, p0 = 5, तो p की वैल्यू है तो p वाले इक्वेशन में डाल दिया, और यहां से हमने देखा है b की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, राइट। नाउ सेकेंड कंडीशन कहता है px एंड qx कट्स द x एक्सिस एट 3 and 0, सो सेकेंड कंडीशन इज px minus qx is equals to, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं 3 and 0। तो इसमें समझने की बात देखो, p एक पॉलिनोमियल, जैसे मान लो 2x + 3 आता है, दूसरा आता है 2x - 9, जब उसको आप सॉल्व करोगे या तो प्लस करो या तो माइनस करो, तो जो नया इक्वेशन आएगा, लीनियर इक्वेशन, वो क्या होगा, वो उसके ये सॉल्यूशन से 30 पॉइंट से पास करेंगे, इसका मतलब वो 30 उसके सॉल्यूशन होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, px की वैल्यू हमारे पास क्या है, ax प्लस b माइनस qx की वैल्यू क्या है, जब माइनस में कोई भी चीज हो तो उसको ब्रैकेट ले लो, क्या है cx प्लस d।
तो ये क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स माइनस डी। ठीक है, इसको और कुछ कर सकते हैं क्या, इधर कर लो, ये x और x कॉमन है तो इसको ऐसे करते हैं, a माइनस सी, x कॉमन ले लिया, प्लस b माइनस डी। एक चीज हमें पता है, ये हमें पता है b, अभी हमने निकाला, तो a माइनस सी एक्स, b की वैल्यू कितनी +5 माइनस डी, ये इतना हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है, दिस इक्वेशन दिस पासेस थ्रू दिस। तो अगर हम x की वैल्यू यहां पे रख दे, ये है ना हमारा px माइनस, यू राइट दिस वे, px माइनस qx इज इक्वल टू a माइनस सी एक्स प्लस 5 माइनस b, राइट। नाउ दिस ओनली, आप इसको समझो जैसे px, मान लो सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, 2x प्लस 3 है और qx जो है ये px है और qx जो है मान लेते हैं 5x माइनस 9 आता है। तो अगर हम इसको दोनों को माइनस करें तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 माइनस 5x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 2x माइनस 5x माइनस 3x और 9 प्लस 3 12। ये क्या था, px माइनस qx। तो इन ये भी जो डिफाइन होकर के एक नया कोई पॉलिनोमियल लिया है ना, जैसे मान लेते हैं इसको, उसको मान लेते हैं इसको कि ये है tx, तो जो नया पॉलिनोमियल आया वो भी तो यही एक पॉलिनोमियल ही होगा। तो वो कहता है कि ये जो नया वाला जो पॉलिनोमियल है, ये एग्जांपल है, ठीक है, तो आई इरेज दिस। तो नया वाला जो पॉलिनोमियल है उसका सॉल्यूशन क्या है, 3 and 0। आपको सिर्फ ये समझाना था कि ये जो इक्वेशन बनेगी, जो दोनों का डिफरेंस होगा वो एक लीनियर इक्वेशन होगा, और उस लीनियर इक्वेशन को क्या है, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसको अभी फिलहाल यहीं रखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या था वो देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, px प्लस qx, दो पॉलिनोमियल को ऐड किया, px प्लस qx, उसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 6x प्लस 4। तो px अभी फिलहाल क्या है, फिलहाल क्या है px, ये है हमारा ax प्लस b, और qx क्या है हमारा, cx प्लस d इज इक्वल टू 6x, ये बराबर है उसके 6x प्लस 4। अब देखो ये a और c में क्या है, कॉमन है, कुछ x कॉमन है, तो x कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस c हो जाएगा और x बाहर आ जाएगा, प्लस b प्लस d को भी इस तरह से लिख सकते हैं, b प्लस d, ब्रैकेट डाल देते हैं। अब ये किसके बराबर है, 6x प्लस 4 के। अब इसको आप देखो, इसको लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, और लिख सकते हो बाय कंपैरिजन। तो अगर ये वाला इक्वेशन को 6x प्लस 4 बनना है, दोनों बराबर है, इस इक्वेशन को 6x प्लस 4 बनना है, तो इसका मतलब क्या है, a प्लस सी की जगह पे क्या आ जानी चाहिए, 6 आ जानी चाहिए, तभी तो 6x हो जाएगा, और 4 की जगह b प्लस डी की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 4 हो जानी चाहिए, तभी तो बराबर होंगे। कंडीशन के हिसाब से ये दोनों क्या है, बराबर है, बराबर है। तो कंपेयर करने पे देखेंगे, तो कंपेयर करने पे क्या कि ये जो a प्लस सी है वो किसके बराबर होगा, c के, और ये b प्लस डी जो है किसके बराबर होगा, 4 के। तो लिखते हैं, तो a प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, ठीक है, और b प्लस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अब एक चीज देखो, b हमने कहीं निकाला था, b की वैल्यू क्या है, 5, b की वैल्यू 5 प्लस d की वैल्यू कितनी हो गई, d तो निकालनी है, तो ये 4, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d की वैल्यू 4 माइनस 5, इट मींस d की वैल्यू हो गई -1। ये क्या हो गया, d का वैल्यू हो गया, राइट। अब ये देखो, ये d की वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालते हैं, ये हो जाएगा a माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5, और ये -1 है तो माइनस डी है तो -1, तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी एक्स प्लस 5 प्लस 1 6। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेंदी है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, सिर्फ समझने की बात। अब देखो, ये जो रिजल्टिंग इक्वेशन कैसे पास कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये x है, ये क्या है, y है। तो कहने का मतलब इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर हम 3 रख दें, क्यों, क्योंकि इससे पास कर रही, तो x की ये वैल्यू रखने पे y की वो वैल्यू आनी चाहिए, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो x की वैल्यू अगर हम इसको, तो दिस पासेस थ्रू 3 and 0,
तो वैल्यू रखो y, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं होता, इसको y मान लो। y की वैल्यू कितनी होगी, 0 इज इक्वल टू a माइनस सी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी रखनी है उन्होंने, 3 रख दी, प्लस, ठीक है। इस 6 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 6 इज इक्वल टू a माइनस सी इंटू 3। तो अभी क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आता हूं मैं, ये -6 हो गया, -6 इज इक्वल टू 3 इंटू a माइनस सी। तो 3 2 6 कट जाएगा, इसका मतलब a माइनस सी की वैल्यू क्या हो गई, -2। अब देखो आपके पास a माइनस सी की वैल्यू है, आपके पास a प्लस सी की वैल्यू है, तो क्या नहीं निकल जाएगा। आपको कौन कौन सी वैल्यू आ गई, आपके पास b आ गई है, आपके पास d आ चुका है, और आपको निकालना क्या है, a एंड c। तो a एंड c निकालना, और a एंड c का 2 इक्वेशन हमारे पास है ना। इसको मान लेते हैं एक इक्वेशन मान लो, इसको ही मान लो। सॉल्व करो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस c इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 6 एंड a माइनस c इज इक्वल टू -2। लेट्स से यहां से क्या करते हैं हम, a की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस c, और इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दो। तो a की वैल्यू क्या रखोगे आप, 6 माइनस c, अगेन माइनस c इज इक्वल टू -2। सो 6 माइनस 2c इज इक्वल टू -2, राइट। सो -2c इधर कर दो, उस इस 6 को उधर ले जाओ, -2 -6, तो -2c इज इक्वल टू -8, एंड दिस माइनस माइनस कैंसिल्स, c की वैल्यू इज 8/2 विच इज 4। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। b निकल गया, c निकल गया, d निकल गया, अब a निकालना है, a यहां से निकाल दीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, a की वैल्यू इज इक्वल टू 6 माइनस c की वैल्यू क्या है, 4। तो a की वैल्यू क्या होगी, तो हमें 2 इक्वेशन थे, दोनों में a b c d नहीं पता था, हमें a b c d निकालना था बेसिस द गिवन कंडीशन, तो निकाल लिया। अब अगर आपको इक्वेशन बनाना है, वो कह रहा है कि पॉलिनोमियल बताइए, तो px क्या था, ax प्लस b, एंड py क्या था, cx प्लस d, राइट। तो अब बताओ ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, a की वैल्यू कितनी आई, 2, तो 2x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस b की वैल्यू कुछ आई थी, 5 आई थी मेरे ख्याल से, 5 है, चेक कर लेंगे, और c की वैल्यू कितना, 4, तो दिस इज 4x, एंड दिस इज, इट वाज, देखो d की वैल्यू क्या थी, -1 थी, ठीक है, -1 थी। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। उसने बोला था पॉलिनोमियल निकाल दो, ठीक है, निकाल दिया, और कुछ बोला है क्या, कुछ नहीं। तो ये हमें पॉलिनोमियल निकालना था, हमने पॉलिनोमियल निकाल दिया। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, px की वैल्यू ये और cx की वैल्यू ये, दीज आर द, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सी व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, look at the first 3 stages of a growing pattern of hexagons. Hexagon means a figure having 6 sides, है ना। सो उसको बनाया गया कैसे, मैचस्टिक से। कैसे बनाएगा, मैचस्टिक, आपको पता है मैचस्टिक ऐसे ही होते हैं, तो एक मैचस्टिक इधर सजा दिया, एक इधर सजा दिया, है ना, एक इधर सजा दिया, फिर एक इधर सजा दिया, एक इधर सजा दिया, ठीक है, और एक ऐसे सजा दिया। कितने साइड हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस 6। A new hexagon gets added at every stage which shares a side with the last hexagon of the previous stage. What it says is, if we move to the second stage, from stage 1 to stage 2, a new hexagon is added, but the new hexagon has one side in common. तो यहां पे कितने हो गए टोटल, देखो स्टेज 1 पे कितने थे इसके पास, कितने थे इसके पास, मैट्रिक्स 6। अभी क्या हो गया इसको, देखो 1 2 3 4 5 6, ये तो पहला वाला था। अभी 1 2 3 4 5, 5 और ऐड हो गए, ये कितने हो गए इसके पास, 11। इसमें ये हो जाएगा 16, ठीक। अब बोल रहा है स्टेज 4 पे क्या होगा, स्टेज 4 पे एंड स्टेज 5, स्टेज 5। तो आप देख लो सब में क्या हो रहा है, +5 ऐड हो रहा है, +6 + 5 11, 11 + 5 16। सो फोर्थ स्टेज पे क्या होगा, 16 + 5, दिस विल बी 21, एंड स्टेज 5 पे क्या होगा, 21 + 5, दिस विल बी 26 मैचस्टिक, 26 मैचस्टिक्स होंगे, ठीक है। ये तो हो गया, इसकी बात हो गई। ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस
दो अलग, उसके बाद आपको स्टेज अगर दिखाना है तो मैंने जैसे यहाँ पे किया है, एक कॉमन करते आप तीसरा वाला है, आप इसी पे देखो एक हेक्सागन ऐसे बना दो, 1 2 3 4 5 और ये छठा, ये आप अलग बनाना, ठीक है। फिर उसके बाद एक और बना देना, ठीक है, आप ये कर लेना। दिस इज फॉर यू। इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेजेस, कितने मैच स्टिक्स होंगे, कौन कौन से बता रहे हैं। नेक्स्ट टू स्टेजेस मतलब फोर्थ एंड फिफ्थ पे, वो तो हमने निकाल लिया, फोर्थ पे 21 मैच स्टिक चाहिए एंड फिफ्थ पे कितना है 26, वो पैटर्न देख के हमने निकाल लिया, ठीक है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये भरने के लिए बोल रहा है। तो फर्स्ट पे कितना था 6, सेकेंड स्टेज पे कितना हो गया वो 11, थर्ड स्टेज पे कितना हो गया 11 प्लस 5 16, फोर्थ स्टेज पे कितना हो गया हमने निकाला 21 एंड फिफ्थ स्टेज पे कितना है 26। तो इस तरह से अगर चलता रहा, इस तरह से चलता रहा, राइट, तो बोल रहा है nth स्टेज पे, ये क्या स्टेज नंबर, ये चौथा स्थान है, पांचवा स्थान, सिक्स प्लेस, सेवेंथ प्लेस, आप स्टेज नंबर बोलो या प्लेस नंबर बोलो। तो nth प्लेस पे नंबर ऑफ कितनी मैच स्टिक्स चाहिए, है ना। तो कैसे निकालोगे इसका पैटर्न, अब देखो रिलेशन देखो, इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है, इन लोगों में कुछ दिख रहा है रिलेशन। सो इसमें हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते। अभी आप ऐसा देखो, स्टेज नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 1 इज स्टेज नंबर एंड 1 ऐड कर दो, कितना होगा 6, फिर 5 है, स्टेज नंबर कितना हो गया 2, 2 प्लस 1 ये 11 हो गया, फिर ये 5 एक कॉमन नंबर लिया और तीसरा स्टेज नंबर कितना पहुंच गया 3 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16। ये तो एक पैटर्न बन रहा है ना। तो पैटर्न क्या बन रहा है, 5 है एक कांस्टेंट, उसके साथ नंबर ऑफ स्टेज मल्टीप्लाई करो प्लस 1 कर दो। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो nth स्टेज पे क्या होगा, ये वाला n हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 5n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू number of matchsticks at nth stage, ठीक है। तो ये जनरल पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। इसको फिट कर दो 5n प्लस, सेम क्वेश्चन इसी स्टिक्स पे, इसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है। इट इज सेइंग that find a rule to determine the number of matchsticks required for the nth stage. So matchsticks required in nth stage, इसका हमने फॉर्मूला अभी तक निकाल दिया 5n प्लस 1, ये तो हमने निकाल दिया, राइट। द फर्स्ट पार्ट इज डन, दिस n इज नंबर ऑफ स्टेजेस, ये थर्ड का हो गया। फोर्थ का देखो, हाउ मेनी मैचस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज ऑफ द पैटर्न, 15th स्टेज पे कितना मैचस्टिक हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या रखनी, 15th स्टेज पे पूछ रहा 15th, तो रख दो वैल्यू रखो 5 इंटू 15 प्लस 1, कितना हो गया ये 75 प्लस 1 इज इक्वल टू 76 क्या चाहिए मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड, 15th स्टेज पे 76 मैच स्टिक्स लगेंगे हेक्सागन बनाने के लिए। लास्ट वन, कैन 200 मैच स्टिक्स फॉर अ स्टेज इन दिस पैटर्न जस्टिफाई योर आंसर। तो बोल रहा है मैच स्टिक्स का नंबर दिया हुआ नहीं है ना, तो क्या दिया हुआ है 200, तो बोलता है किसी स्टेज पे 200 अगर आपके पास मैच स्टिक्स हो गए तो क्या किसी स्टेज पे ये बन पाएंगे 200 मैच स्टिक्स से कुछ। तो देखते हैं, हमें स्टेज निकालना है, तो 5n प्लस 1, तो आप कर सकते हो 200 माइनस 1 इज इक्वल टू 5n, ये इक्वल टू है, तो ये हो गया 199 इज इक्वल टू 5n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ स्टेज 199 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आ जाएगा। सो दिस वुड बी अ डेसिमल वैल्यू, दिस इज अ डेसिमल वैल्यू, इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, डेसिमल वैल्यू मींस टूटा हुआ। तो यहां तो ये नहीं कह रहा है कि मैचस्टिक एक है तो एक है, ऐसा नहीं कि इसका इतना पार्ट भी ले सकते हैं, हेक्सागन बनेगा नहीं, क्योंकि हेक्सागन इज ए क्लोज्ड फिगर वेयर ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो एक मैचस्टिक है तो एक लगेगी, उसमें आधा या 1/3 1/4 नहीं कर सकते। दिस इज सम पॉइंट वैल्यू, राइट। So it means we will say since the number is not a natural number, so not possible in any of the stages, ठीक है। ये हो गया आपका, चलो नेक्स्ट।
Okay, this is also a very important question. Now we'll put the question equations. Px is equals to, what is this, ax plus b. Now it is passing through 2 3. It means the y value is 3, so this is equal to 3 is equal to x की value is 2, so this would become 2a, right, plus b. फर्स्ट पॉइंट से जब ये पास कर रहा है, सेकंड कब ये पास कर रहा है, सेकंड कंडीशन as per second, this is first condition. The value should be y is what, 11 is equal to 6a. This should be 6a plus b again, right? Two equations we have. Now if you see the qx is equals to cx plus d. So this is passing through what? This is passing through 4n minus 1. So this is x, this is y. So y minus 1 is equals to x की value 4. So it is 4c plus d. These two equations we get. Now third point it is saying, third point, the graph of qx is parallel to the graph of px. तो पैरेलल कब होता है, जब स्लोप्स क्या होते हैं, सेम होते हैं. इसका मतलब सिंस ग्राफ इज पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल. स्लोप इक्वल हो जाएंगे, राइट. स्लोप इक्वल होंगे, इसका मतलब क्या हो गया, a इज इक्वल टू सी, है ना. ये यहाँ पे ये क्या है, ये स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दी. a इज इक्वल टू सी. So now we'll try to use this particular condition. So let's say if it is, let's name it out. This is 1 equation, this is 2, and this, let's say this one we call it 3. From 1, तो हम लोग क्या करते हैं, इससे b की वैल्यू निकाल लेते हैं. From 1 the equation is 3 is equals to 2a plus b, right? If we let's say find out value of b would be 3 minus 2a. Now put this value here, putting in equation 2, इसमें रखते हैं. 11 is equals to 6 into a plus b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू होगी 3 minus 2a. करेक्ट. कुछ नहीं किया, हमने b की वैल्यू निकाली और उसमें इस इक्वेशन में डाल दिया. तो आप देखो 11 minus 3 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 11 minus 3, ये क्या हो जाएगा, 6a minus 2a 4a, and 11 minus 3 8 is equals to 4a. So a की वैल्यू कितनी होगी, 8 by 4, मतलब 2 हो गया. तो a की वैल्यू क्या हो गई, 2. तो देखो a की वैल्यू 2 निकल गई, तो b की वैल्यू निकल जाएगी. यहां से निकालो b, यहां से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू 3 minus 2a. a की वैल्यू 2 into 2 is equals to 3 minus 4 is equal to minus 1. तो ये हो गई b की वैल्यू. देखो b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, और ये थर्ड क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों स्लोप इक्वल है, तो a और c बराबर है. इसका मतलब क्या होगा, c की वैल्यू भी क्या हो गई, c की वैल्यू भी 2 हो गई, क्योंकि a और c बराबर है. तो a आ गई, b आ गई, c आ गई, d नहीं आई. तो क्यों नहीं आई, c की वैल्यू यहां रख देते हैं, है ना. सो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है, -1 is equals to 4c plus d, -1 is equals to 4 into c की वैल्यू कितनी है, 2, मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस d की वैल्यू हमें निकालनी है. तो -1 is equals to 8 plus d, एंड ये -1 है, इधर ये चला जाएगा, -8 is equals to d. इसका मतलब d की वैल्यू क्या होगी, -9, d की वैल्यू. अब तो कुछ है, अब कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल. पहले तो बोलता फाइंड द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल निकाल लो. पॉलिनोमियल क्या होंगे, क्या था, ax plus b, राइट. a की वैल्यू रखो, a क्या था, 2, सो ये हो गया 2x. अलग से दिखाते हैं, 2x. b क्या था आपका, b कहीं तो निकला था, b -1, तो 2x - 1. ये पहला पॉलिनोमियल हो गया. दूसरा qx क्या होगा, वो क्या था, cx plus d. इसकी वैल्यू रखो, क्या होगा, cx मतलब 2, सो क्या हो गया 2x, और d की वैल्यू 9, तो माइनस है तो -9. तो पहला पॉलिनोमियल ये, दूसरा पॉलिनोमियल ये हो गया, 2x - 1 एंड 2x - 9. अब ये कह रहा है, एक क्वेश्चन इसमें हमारा बच गया, फाइंड द पॉलिनोमियल्स. वी फाउंड आउट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस मीट द x एक्सिस. तो
तो एक्स एक्सिस पे कहां मीट कर, पहले चलो एक और पे लिखते हैं। px की वैल्यू हमारी हो गई 2x माइनस 1 एंड qx की वैल्यू हो गई, कितना आ गया था 2x माइनस 9, राइट। ये x एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, अगर y एक्सिस बोलता नहीं तो माइनस 1 है, बी इंटरसेप्ट बता देते माइनस 1 माइनस 9। x एक्सिस को कहां पे कट, सिंस लाइन कट्स द x एक्सिस पे अगर कट कर रही है तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू का 0 का मतलब दैट इज, इसका मतलब यहां पे px की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, रख दो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तो ये इधर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू 1/2, ठीक है। क्या होगा कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे कट करें तो x की वैल्यू तो है 1/2 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका 0 हो जाएगा, क्योंकि x पे इंटरसेप्ट है तो x पे वैल्यू होगी y 0 हो जाएगा। लाइकवाइज 2x माइनस 9, सो 9 इक्वल्स टू 2x और x इक्वल्स टू 9/2। आप 9, अगर बुक में आपको 1/2 को 0.5 दिया तो भी ठीक है, लेकिन आप ऐसे भी छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 4.5 हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट वेयर इट कट्स द x एक्सिस, क्या हो जाएगा, x एक्सिस को काट रहा है तो x की वैल्यू डालो पहले और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन fx इज इक्वल्स टू ax प्लस, लेट्स से फॉर सिंप्लिसिटी इसको हम मान लेते हैं y इज इक्वल्स टू a प्लस ax प्लस, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब ये कह रहे हैं कि यहां पे देख रहे हो स्लोप, उसकी वैल्यू a है, अगर मतलब a की वैल्यू 2 लेते हैं तो वही वैल्यू यहां पे पास ऑन होती है, b की वैल्यू भी 2 ही है ना। तो कुछ तो है इसमें, देखो 2 स्लोप भी है 2 इंटरसेप्ट भी, मतलब इंटरसेप्ट एंड स्लोप्स आर सेम, बट यहां पे एक कंडीशन दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन 0, स्लोप हमेशा क्या है पॉजिटिव है। तो क्या कॉमन होगी इस तरह के इक्वेशंस में, पहली चीज तो आप जो देख रहे हो, देखिए a इज ग्रेटर देन 0, द स्लोप विल बी पॉजिटिव, स्लोप क्या होगा, स्लोप विल बी पॉजिटिव, इंक्रीजिंग डायरेक्शन, इंक्रीजिंग या जिसको आप क्या बोलते हो राइजिंग भी बोलते हो, राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये तो होगा ही। सेकंड इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, इंटरसेप्ट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इंटरसेप्ट का मतलब y एक्सिस को कहां कट कर रही है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0, तो इंटरसेप्ट एक्चुअली अगर हम देखेंगे उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, x की वैल्यू 0, इसका मतलब y इज इक्वल टू x की वैल्यू a इंटू 0 प्लस a हो गया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 0 हो गया तो y की वैल्यू a, मतलब इंटरसेप्ट भी जो हमेशा क्या होगा a होगा। तो इसका अगर हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सच लाइंस, तो क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, y तो है x क्या है 0, ये इसका कोऑर्डिनेट होगा, ये फिक्स कोऑर्डिनेट होगा, हमेशा यहीं से पास करेगा, राइट। और क्या बात हो सकती है, x इंटरसेप्ट की बात कर सकते हैं, मतलब ये इस तरह की लाइन जो है वो x को कहां पे काटेगी, तो क्या होगा उसके लिए y 0 हो जाएगा, y जब 0 होगा तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या लिखा ax प्लस a, y 0 हो गया ax प्लस a, तो ax की वैल्यू a सॉरी माइनस a हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी a बाई a माइनस कट जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। इसका मतलब x इंटरसेप्ट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट x तो वैल्यू है -1 और ये कोऑर्डिनेट हो गया x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो गया। लाइन पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग में होगा, राइजिंग होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा। ओके, ग्रेट वर्क। I hope you all would have enjoyed the class of introduction to linear polynomials. Do check if you need any support or if you have to repeat something by your own. Do check my video. Comment on this if you have any questions on the video. I'll take those questions in any of the classes. So here we have come to the end of linear polynomials. So अगले क्लास में मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। हमारा नया चैप्टर होगा द वर्ल्ड ऑफ द नंबर्स, राइट, द वर्ल्ड ऑफ द नंबर्स। उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे फोकस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।